Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are very well. I welcome you to the Orchard Education System online class. Today the day is Tuesday and the date is 15 December 2020. Our subject is English. The teacher name is Miss Maria. Lecture number 2. Our book name is Oxford Modern English, page number 55 and 56. Today our topic is the flying machine. So students, as you are well aware that we are done with our exercise, with our reading and explanation of the chapter. So we shall do our exercise today. Take out your books, open the page number 55. Here are some questions given, question number A, B, C, and also on page number 56, question number D, E, F, G, H. These are the questions. I have done these questions for you in my notebook. You also take out your notebooks from your bags. Mention the date 15 December 2020, CW, day, Tuesday, topic name, the flying machine, underline the topic, write answer the following questions, draw your margin lines as well. Your work should be neat and clean. Write the question number 1. What was Sami drawing? Sami क्या draw कर रहा था? Sami was drawing a flying machine. What was Sami drawing? Sami was drawing a flying machine. Question number 2 is describe Uncle Salim. Uncle Salim को describe करें. Uncle Salim कैसे थे? Uncle Salim was old and fair. Uncle Salim was old and fat and had a long mustache and a shiny bald head. Uncle Salim old थे and fat, मोटे थे, and had a long mustache, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, and shiny bald head. This is the word head, H-E-A-D, head. What? Question number 3. What were the loops for? The answer is the loops were for feet. The loops were for feet. Question number 4 is what material and tool did Sami use to build his glider? अपने glider को build करने के लिए Sami ने कौन से materials use किए थे? Sami used some bamboo, strings and newspaper, a knife and a screwdriver and blue pants. Sami used some bamboos, strings and newspaper, a knife and a screwdriver and blue paint. Question number 5 is how long did it take to make the glider? Glider बनने में कितना time लगा था? Answer is it took 2 months to build the glider. It took 2 months to build the glider. Question number 6 is how could the pilot control the glider? The pilot could control the plane by using the loops and the bar. The loops of string were for feet. The bar was moved with the hands. The pilot moved the bar to make the plane go up or down. To go right, the right foot had to be pushed down. To go left, the left foot had to be pushed down. Student, write this answer. Question number 7 is why did Uncle Salim think Sami's machine would not fly? अंकल सलीम क्यों सोचे थे कि समी की मशीन जो है वो नहीं उड़ेगी? बिकॉज द मशीन वॉज टू स्मॉल एंड हैड नो इंजन. क्योंकि मशीन बहुत छोटी थी और उसका कोई इंजन भी नहीं था. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाई अंकल सलीम वॉज नॉट फ्राइटेंड. अंकल सलीम क्यों खौफजदा नहीं थे? अंकल सलीम वॉज नॉट फ्राइटेंड बिकॉज ही थॉट दैट द प्लेन वुड नेवर लीव द ग्राउंड. अंकल सलीम इसलिए खौफजदा नहीं थे क्योंकि वो सोचते थे कि प्लेन जो है कभी भी ज़मीन को नहीं छोड़ेगा, मतलब कभी भी नहीं उड़ेगा, कभी नहीं उड़ सकेगा. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप लोगों ने अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से लिखने हैं और इनको याद भी करना है. नाउ कम टू दी बुक पेज नंबर 56 अगेन. लुक द क्वेश्चन नंबर 2. से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स अबाउट द स्टोरी. स्टोरी के बारे में बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं. ए, अंकल सलीम वॉज नॉट वेरी हैप्पी. अंकल हैवी. अंकल सलीम जो है वो भारी नहीं थे. फॉल्स. अंकल सलीम फैट थे और ओल्ड भी थे, तो वो भारी तो होंगे. सो अंकल सलीम वॉज नॉट वेरी हैवी. फॉल्स. बी, समी यूज्ड गैराज एज अ वर्कशॉप. क्या समी ने गैराज को वर्कशॉप के तौर पे यूज़ किया था? येस, ट्रू, क्योंकि समी ने अपने मशीन का काम गैराज में ही किया था. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सी इज समी डिड नॉट यूज एनी स्क्रूज.
फॉल्स, समी ने तो स्क्रू यूज किए थे। डी, समी कवर्ड द विंग्स विथ क्लॉथ, क्या समी ने जो विंग्स थे जहाज के, जो पर थे, उनको कपड़े से कवर किया था? फॉल्स, उसने तो उनको न्यूज़पेपर से कवर किया था ना। ई, अंकल सलीम थॉट द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, ट्रू, अंकल सलीम यही सोचते थे कि ग्लाइडर फ्लाई नहीं करेगा, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। So, come to the question number 3. Answer the questions about this line taken from this story. At that moment, he heard a knock at the front door and ran to see who it was. A. Who ran to the front door? कौन भागा था front door पे? समी. B. Who was at the front door? Front door पे कौन था? Uncle Salim. C. What had been finished at that moment? जब अंकल सलीम आए थे तो क्या चीज़ फिनिश हो चुकी थी? जो डिज़ाइन था समी का वो ख़त्म हो चुका था ना। सो द आंसर इज समी डिज़ाइन फॉर मशीन, समी डिज़ाइन फॉर फ्लाइंग मशीन। क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? समी टुक अंकल सलीम इनसाइड एंड शोड हिम द ड्राइंग ऑफ हिज फ्लाइंग मशीन। उसके बाद समी अंदर लेके गया अंकल सलीम को और अपनी डिज़ाइन दिखाया फ्लाइंग मशीन का। Now come to the section B, working with words. A general name for boys, girls and babies is children. Find general name for the following. अब कहते हैं कि अगर हम जनरल नेम देखें, बॉयज़, गर्ल्स और बेबीज़ हैं तो उनको हम चिल्ड्रन कहेंगे। इसी तरह अगर हम देखें काउ, कैट, डॉग, गोट, तो ये क्या है? ये क्या है? सब एनिमल्स है ना, ये सब क्या है? एनिमल्स हैं, तो इनका जनरल नेम होगा एनिमल्स। इसी तरह हमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ दी हुई हैं, हम देखते हैं कि इनका जनरल नेम क्या है। लेट्स सी। ए, बीन्स, पीज, पोटैटोज। अब देखें, बीन्स, पीज और पोटैटोज। बीन्स जो दाल होती है, दाल के दाने, और पीस और पोटैटोज, ये सब क्या हैं? सब्जियां हैं। पीस मटर, पोटैटोज आलू, सब्जियां हैं ना ये सब। सो इनका जनरल नेम क्या होगा? वेजिटेबल्स। बी, लिलीज, रोजेज, ऑर्चिड्स, ये भी सब फ्लावर के नेम्स हैं, तो इनका जनरल नेम क्या होगा? फ्लावर्स। सी इज टाइगर्स, लॉयंस, डॉग्स, ये सब क्या है? जानवर है ना, एनिमल्स है ना, तो इनका जनरल नेम क्या है? एनिमल्स। डी, रॉबिन्स, ईगल्स, डोव्स, ये सब क्या है? परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, सो इनका जनरल नेम क्या होगा? बर्ड्स होगा। ई इज अर्जेंटीना, इटली, कनाडा, ये सब किसके नेम्स हैं स्टूडेंट्स? कंट्रीज के नेम्स हैं, सो इनका जनरल नेम क्या होगा? कंट्रीज। Okay students, now come to the next page, section C, learning about language. Underline the verbs in the following sentences. हमने इन sentences में verbs को underline करना है, और मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि verbs क्या होते हैं students? I have told you that verbs are action words. Verbs are action words. Action words are called verbs. Action words are called verbs. Action words are called verbs. So the action words जो होते हैं उनको verbs कहते हैं. Action words के कोई भी एक्शन जो शो कर रहे हो, वो वर्ड्स जो एक्शन शो कर रहे हो, कोई भी काम शो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रनिंग, रनिंग भी काम है, एक्शन है। ईटिंग, ईटिंग भी एक्शन है। फ्लाइंग, उड़ना, फ्लाइंग भी एक्शन है। इसी तरह वॉकिंग, वॉकिंग भी एक्शन है। टॉकिंग, टॉकिंग भी एक्शन है। सो दीज आर ऑल एक्शन वर्ड्स एंड दीज आर कॉल्ड वर्ब्स, इनको हम वर्ब्स कहते हैं। सिमिलरली हियर वी आर गोइंग गिवन 3 sentences, we have to underline verbs in these sentences. The sentence A is the girls danced and boys boys ran, the girls danced and the boys ran. अब देखिए इनमें verbs कौन से हैं? danced और ran, क्योंकि ये शो कर रहे हैं एक्शन को। B is a teacher smiled when the students sang. हमारी टीचर smiled, हंसी, when the students sang, जब बच्चों ने गाया। So smiled and sang are actions, so these are verbs. We have to underline smiled and sang. C is the elephants trumpeted loudly. The elephants trumpeted loudly. So here is the trumpeted verb. Underline the trumpeted. Now
Adverbs. Some words can tell us more about the verbs in a sentence. For example, the girls danced beautifully, the boys ran quickly. The words beautifully and quickly are called adverbs. They tell us about verbs danced and ran. अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं. एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करें, जो वर्ब को डिस्क्राइब करें कि जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है. अब देखिए यहाँ पर गर्ल्स डांस्ड ब्यूटीफुली. अब गर्ल्स डांस कर रही हैं, किस तरह डांस कर रही हैं? ब्यूटीफुली, खूबसूरती से डांस कर रही हैं. सो ब्यूटीफुली जो है यहाँ पर क्या होगा? एडवर्ब होगा, जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. वर्ब क्या है? डांस्ड. ओके. द बॉयज रैन क्विकली. बॉयज जो है वो किस तरह भागे? क्विकली, तेजी से भागे. अब देखिए रैन जो है वो वर्ब है और रैन को डिस्क्राइब कर रहा है क्विकली, कि भागे किस तरह रैन किया? क्विकली. सो क्विकली इज एन एडवर्ब. So students, on the next page we are find the adverbs in the following sentences. We are given some sentences. We have to find out adverbs from these sentences. We have to underline the adverbs. The sentence A is, the teacher spoke crossly to one of the boys. ठीक है. The teacher spoke crossly to one of the boys. अब spoke को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? Crossly. Spoke verb है and crossly इसमें क्या है? Adverb. B. The boy spoke politely to the teacher. Boy spoke politely to the teacher. So spoke verb है और कैसे spoke किया? कैसे बोला? Politely, नरमी से बोला. So politely is an adverb. The dog ate his dinner quickly. कुत्ते ने अपना डिनर किस तरह खाया? Quickly खाया, तेजी से खाया. So quickly is an adverb. The boy marched smartly. Smartly is an adverb. ये भी आप लोगों को बताया था कि मोस्टली आप लोगों के लेवल तक अगर जिस वर्ड के आखिर में एल वाई जो है ना वो एडवर्ब की पहचान है. एल वाई अगर जिस वर्ड में हो तो वो एडवर्ब होगा. ये छोटे लेवल तक जो है ये बात कही जाती है. एडवर्ब की काइंड्स भी जो है आपको बताई थी मैंने, बट वो यहाँ पर यूज़ नहीं हुई. यहाँ सिर्फ एल वाई वाला ही यूज़ हुआ है, तो हम यही देख रहे हैं. Quite often we make adverbs from adjectives. Here are some examples. Adjectives, adverbs. Quick. अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें. ये भी हमने देखा था क्लास में कि नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करें वो एडजेक्टिव्स होते हैं. कि जो नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करें वो एडजेक्टिव्स होते हैं. जैसे अ गर्ल इज़ ब्यूटीफुल. गर्ल को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है जो गर्ल के बारे में बता रहा है कि लड़की खूबसूरत है. सो एडजेक्टिव जो है यहाँ पर कुछ गिवन है हमें. क्विक, नियर, हैप्पी, कंफर्टेबल. तो इनसे हमने एडवर्ब बनाना है. हमें पता है कि एल वाई लगाएंगे. अगर एडजेक्टिव के आगे यहाँ पर एल वाई लगा लें तो वो एडवर्ब्स बन जाते हैं. क्विक के आगे एल वाई लगाया, क्या बन गया? क्विकली. नियर के आगे एल वाई लगाया, क्या बन गया? नियरली. हैप्पी, हैप्पीली. कंफर्टेबल, कंफर्टेबली. सो एडवर्ब्स जो है वो यहाँ पर बना दिए हुए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो देन फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एडवर्ब्स अबव. अब हमने अंडरलाइन करना है वर्ब को और सेंटेंसेस में फिल करना है एडवर्ब्स. ठीक है. येस्टरडे आई वाज डैश रन ओवर बाय अ कार. अब देखिए यहाँ पर येस्टरडे आई वाज नियरली रन ओवर बाय अ कार. तकरीबन ही मैं कार आई वाज रन ओवर बाय अ कार. सो यहाँ पर एडवर्ब क्या है? नियरली. तो ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे? नियरली. और यहाँ पर वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब क्या है यहाँ पर बताएं? रन ओवर. वर्ब क्या है? रन ओवर. ओके. अंडरलाइन करना है वर्ब्स को भी. द बी इज गो डैश टू द शॉप एंड बाय सम राइस. गो क्विकली टू द शॉप एंड बाय सम राइस. सो यहाँ पर वर्ब क्या है? बाय. and quickly is an adverb which has to be used in this sentence. See, my father lived dash until he was 90. My father lived happily until he was 90. और यहाँ पर verb क्या है? lived. verb क्या है यहाँ पर? lived. Yes. My mother can sit dash in that chair.
My mother can sit comfortably in that chair. So the verb is sit and adverb यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा? comfortably. आपने verbs को अंडरलाइन भी करना है और उसके बाद एडवर्ब्स जो प्रॉपर एडवर्ब्स ब्लैंक्स में आ रहे हैं वो भी लिख लेने हैं. ओके, गॉट इट? सो एट द नेक्स्ट पेज वी आर गिवन सम सेंटेंसेस. हमने यहाँ पर वर्ड्स को फिल करना है. ये आप फिल कर लें. देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ tree whose whiskers were lovely to see, but the birds of the air plucked them perfectly bare to make themselves nests in that tree on that tree. So यहाँ पर ये जस्ट वर्ड्स आप लोगों ने यहाँ पर मिसिंग वर्ड्स जो हैं आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर लेने हैं. जितना काम मैं आप लोगों को करवा रही हूँ बुक पे या वर्क बुक पे, आप लोगों ने वही काम करना है. हमने वही करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी. यू हैव टू राइट दिस ऑन योर बुक एंड नोटबुक neatly and cleanly. You also have to learn this all by your heart. I will take your test and also I will check your copies. आप लोगों का काम बहुत अच्छा होना चाहिए. Okay students, thank you. Allah Hafiz. Have a nice day.